फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक बार कमेंट सेक्शन में सब लोग बताइए और इमीडिएटली सब लोग शेयर भी कर दो। एंड एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ वी स्टार्ट टुडे सेशन। देखो, अगर ग्लेडिएटर आपको कोई भी क्वेरी है ना, यू जस्ट सर्च मी ऑन फेसबुक एंड मैसेज मी। ओके, सर्च, जस्ट यू हैव टू सर्च मी ऑन फेसबुक एंड यू जस्ट हैव टू मैसेज मी देयर। तो आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर दो, आई विल बी रिप्लाइंग योर क्वेरीज। फाइन, ओके ओके। चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो टुडे सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज नाउ यू आर कंफर्टेबल इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द transmission line. So we are comfortable in most of the parts of the transmission line. Now we are coming gradually to the analysis part. So gradually we are coming on to the analysis part. Analysis part is going to be very important for us. Fine? Okay. चलो देखते हैं। तो अभी lossless transmission line का थोड़ा सा analysis करना start करते हैं and let us try to understand these points very clearly. So first of all, in this case we want to understand that what are the voltages and current at a distance from the load. So first of all, who is present in the comment section? Everyone let me know. I'm just giving you one statement. I'm just giving you one statement. You have to tell me whether that statement is correct or not. So what I'm telling is that anywhere on the transmission line, if I have to calculate the voltage or current, so the voltage and current will always be the summation of or the combination of forward voltage wave and the backward voltage wave. So how many of you are concurrent or how many of you are convinced with this particular statement? Hopefully everyone is convinced with this particular statement that if you want to calculate the voltage or current or whatever at any point on the transmission line, that will be the combination of forward voltage as well as the backward voltage. Fine. तो देखो यहाँ पे मैं क्या क्या समझाता हूँ आपको, एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है। This is going to be x. This is x equal to 0. This is x equal to L, and this complete length is going to be L. Fine. This is going to be L. Okay. Let me write this thing as ZL. This is your ZL. Okay, so exactly at this point, what is your x? This is x equal to 0. So this actually represents the position of the load itself. Okay, so this x equal to 0 will represent the position of the load itself. Can you tell me? Can you calculate the reflection coefficient at this point? So this will represent voltage reflection coefficient and this will represent the current reflection coefficient. I think this is very basic diagram which everyone can follow as of now. So in this transmission line, what I want to achieve actually, this is your transmission line, this is generator voltage, generator impedance, and this is your load impedance ZL. We know that the gamma V at x equal to 0 can be written as at load and gamma E at x equal to 0 can also be written at the load. तो लोड का मतलब क्या होता है? x इक्वल टू 0. जो भी एक्सप्रेशन आपने अभी तक ऑब्टेन करे, इफ यू सिंपली पुट x इक्वल टू 0 इन दैट, यू विल इमीडिएटली गेट दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी व्हिच इज प्रेजेंट एट द लोड. मैं क्या करना चाहता हूँ, जो अपने पास एक्सप्रेशन थे उसको मैं थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ. So if I want to write the voltage Vx, what will be the voltage Vx? It was VL upon 2 ZL, ZL plus Z naught into e to the power minus j into e to the power j beta x plus VL upon 2 ZL. एक एक कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से समझना, then only you will understand the calculations. ठीक है? This was very easy to understand. After that, what you can do, I can simply consider this VL upon 2 ZL, ZL plus Z naught, e to the power j beta x. Fine. So inside that I got it as ZL minus Z naught upon, ये आप भी साथ के साथ करते चलेंगे. So whatever the rough copy or the fair copy or whatever you have, you just keep doing it with me. ठीक, fine. Okay, what I want to now write it as, I want to write this particular quantity as VF. Okay, and you must remember that this VF can also become what? A complex quantity. क्योंकि यहाँ पे ZL, Z naught सारी चीजें आ रही, so this can also become a complex quantity. ठीक है? So just I have written this VF, and you should understand that this VF will become a complex quantity. So that is why I have written it like this. Now, what is this?
दिस इज योर गामा वी. गामा वी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे? गामा वी एक्स इक्वल टू 0. दिस गामा वी ऑल्सो हैड सम मैग्नीट्यूड एंड सम फेज. ठीक है, so just I want to replace all the things with this particular quantity. यहाँ तक I hope everyone is comfortable, so we can proceed further. Just I have assumed this quantity to be mod v of e to the power j theta f. I have assumed this quantity to be gamma v, which is gamma v at x equal to 0. So I just want to replace all the things. So this vx becomes v of e to the power j beta x 1 plus gamma v e to the power j theta v minus 2 beta x. चलिए यहाँ तक ठीक है सबको? हाई पॉइंट समझ आ रहे हैं यहाँ तक? एवरी पॉइंट इज क्लियर एज ऑफ नाउ. So we just have modulated this particular Vx in this format. So this is the desired format. From there we want to actually achieve something which is very important. तो इसको ज़रा ध्यान से समझिए, इसको आगे हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं. ये आपका हो गया Vx. ज़रा ध्यान से बताना यहाँ पे, अगर मैं क्या करता है, ये जो Vf इंटू ई टू द पावर जे बीटा एक्स दिख रहा है, Vf ई टू द पावर जे बीटा एक्स 1 प्लस, अच्छा इसको मॉड गामा भी कर लो ना, आपने मॉड रख दिया ना, एक्चुअली इट वाज योर गामा भी, बट वी हैव पुट मॉड गामा भी ई टू द पावर जे थीटा भी. तो जस्ट आई हैव रिटन इट एज मॉड गामा भी. थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है बट वो वर्थ इट है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स मिलने वाले हैं. फाइन, ये चीज़ हमें मिली. ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं ये वाला जो पैरामीटर था, दिस पैरामीटर, इफ़ आई वुड हैव मल्टीप्लाइड दिस पैरामीटर विद दिस वन, क्या ये मुझे पूरा का पूरा फॉरवर्ड वोल्टेज दे देता? आई थिंक यस, है ना. सिमिलरली अगर ये वी एफ ई टू द पावर जे बीटा एक्स को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता, तो क्या ये मुझे एक बैकवर्ड वोल्टेज देता? More than that, you can also consider this fact from here, that this is actually representing what? Forward, and this is actually representing your backward. तो ये वाला आपका जो वेवफॉर्म है, ये बैकवर्ड वेवफॉर्म का हिस्सा है, and this particular thing is you are getting it as the forward wave. ठीक है, very simple as of now. I think very easy to follow. Just I have written the expressions that we have already developed. ये already develop कर चुका है. Just उसी में slight modifications मैं करता जा रहा हूँ. So once you have done this modification from here, I just want to calculate one very important parameter. देखो यहाँ पे मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ. ये देखो Vx को मैं थोड़ा सा और इलाबरेट करता हूँ. So it is coming out to be e to the power j beta x. अब देखो ये e to the power j theta को आप क्या लिख सकते हैं? You can write this thing as cos phi plus j sin phi. Yes or no? So any e to the power j phi can be written it like this. So I also want to write it like this. 1 प्लस, ये देखो गामा भी को तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, तो ये रहा मॉड गामा भी. यू कैन राइट दिस क्वांटिटी एज कॉस थीटा भी माइनस 2 बीटा एक्स, और साथ में माइनस जे का एक एक्स्ट्रा साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको प्लस जे मॉड गामा भी साइन थीटा भी माइनस 2 बीटा एक्स. चेक करो यहाँ पे, चेक करके बताओ क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आप ऐसा भी कर सकते थे, द सेम थिंग यू कुड हैव डन इन दिस केस, कि यहाँ पे जस्ट हम लोगों ने इसको कॉस और साइन के फॉर्म में लिख दिया. मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहता हूँ. एक अगर आपको समझ आ गया, बाकी सारे आप खुद से कर सकते हैं. दिस बिकम्स ई टू द पावर जे बीटा एक्स 1 प्लस मॉड गामा बी कॉस 2 बीटा एक्स माइनस थीटा बी प्लस जे टाइम्स मॉड गामा भी. मैं यहाँ से माइनस साइन बाहर ले लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से माइनस साइन बाहर लेता हूँ, दिस विल बिकम माइनस जे साइन 2 बीटा एक्स माइनस थीटा. ठीक है, तो मैं चाहता तो माइनस साइन बाहर ले लेता, यहाँ पे मैंने थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर लिया. सो द सेम थिंग हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय माइनस थीटा. दिस ऑल्सो आई हैव रिप्लेस्ड इट बाय माइनस थीटा. तो जस्ट मैंने नेगेटिव साइन को अंदर भी एडजस्ट करना सीख लिया. चलो यहाँ तक भी सबको सारे पॉइंट क्लियर है. फाइनली हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी, कैन यू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी? इफ आई वांट टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी, यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, x बीच में माइनस जे वाई. तो आपको जो फॉर्मेट दिख रहा है, द फॉर्मेट इज लुकिंग लाइक सम x माइनस जे वाई. सो व्हाट विल बी द मॉड ऑफ Vx?
इफ आई एम इंटरेस्टेड इन द कैलकुलेशन ऑफ मॉड ऑफ वी एक्स, यहाँ पे एक बाहर मॉड लग जाएगा ई पावर जे बीटा एक्स, और एक मॉड आपका अंदर लग जाएगा। अंदर वाले मॉड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 1 प्लस मॉड गामा वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 बीटा एक्स माइनस थीटा वी प्लस मॉड ऑफ गामा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 बीटा एक्स माइनस थीटा वी, और यहाँ पे देखो 2 cos ए cos बी का फॉर्मूला लगाएंगे। सो दिस विल बिकम 2 cos 2 बीटा एक्स माइनस थीटा वी इंटू मॉड गामा वी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका आ गया अंडर रूट के अंदर। यहाँ तक अगर सबको क्लियर हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर हम लोग आगे चल सकते हैं। सो एवरीवन इज फॉलोइंग एज ऑफ नाउ, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें लेंदी है, बट इट इज़ वर्थ वाइल बिकॉज द एक्सप्रेशंस दैट यू विल गेट एट द एंड ऑफ इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग दैट व्हाट यू शुड डू इन दिस केस। मैंने e टू द पावर जे बीटा एक्स लिखा, मैं देखो चाहता तो यहीं पे डायरेक्ट माइनस साइन कॉमन ले सकता था, अगर आप चाहते ना। इनफैक्ट मैं यहाँ पे वही लिखना चाहता था कि अगर आप यहीं पे माइनस साइन कॉमन ले लेते ना तो आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलता। ये माइनस साइन अगर हम लोग कॉमन ले लेते तो अंदर आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलने वाला था, विच यू कैन राइट इट एज 2 बीटा एक्स माइनस थीटा। ठीक है, वो सेम ही चीज़ है, आप यहाँ पे उसको एडजस्ट कर लो या फिर यहाँ पे कर लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। सो होपफुली एवरीवन इज फॉलोइंग दिस पॉइंट। आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज दिस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो वंस यू डू दिस, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज गोइंग टू बी 1। सो मॉड ऑफ वी एक्स यू आर गेटिंग इट एज, अच्छा ये देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो आपका मॉड वी एफ ही बचेगा ना, क्योंकि ये ई पावर जे बीटा एक्स 1 हो जाएगा। सो यू विल गेट मॉड ऑफ वी एफ अंडर रूट 1 प्लस मॉड गामा वी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड गामा वी कॉस 2 बीटा एक्स माइनस थीटा वी। यहाँ तक शायद सबको सारे पॉइंट समझ आ रहे हैं। अगर यहाँ तक आपको सब समझ आया तो इसके बाद वाली जो एनालिसिस है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसमें आपको सारी की सारी कैलकुलेशंस मुझे बतानी। Fine, I hope it is clear as of now. So what we have done till now, we just have calculated the magnitude of Vx, और magnitude of Vx आपका magnitude of Vf आ गया 1 plus mod gamma v square plus 2 times gamma v 2 beta x minus theta v. Is it clear? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बार इसको कंफर्म करो अगर यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद के एनालिसिस आपको करने, आई जस्ट गिव यू द सिचुएशंस, यू जस्ट हैव टू टेल मी व्हाट वी हैव टू डू इन दैट केसेस। ठीक है, चलो ठीक है। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग the magnitude of voltage at a distance x from load, at a distance x from load, first one. Secondly, it is also representing the combination of forward plus backward. ये जो भी मैग्नीट्यूड आ रहा है, दिस वोल्टेज, इट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। चलिए ये बात भी समझ आई। अब फाइनली आपको एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सोच समझ के बताना है। आपको मुझे ये बताना है, ये मॉड वी एक्स जो हमने लिखा वो तो ठीक है, कितने लोग ये बता सकते हैं कि मॉड वी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। ये मैंने लिख दिया 1 प्लस मॉड गामा वी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड गामा वी कॉस 2 बीटा एक्स माइनस थीटा। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हेन दिस इज गोइंग टू अचीव द मैक्सिमम वैल्यू। तो उसके लिए मुझे देखो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट पैरामीटर, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड लेने के बाद कांस्टेंट हो गया। ये एक पैरामीटर है जो वेरिएबल, वाई दिस इज वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक्स वाला टर्म आ रहा है। सो ओनली दिस पैरामीटर आई कैन लुक इट एज वेरिएबल, ऑल दिस पैरामीटर्स आर कांस्टेंट। और आपको यहाँ से दिखना भी चाहिए, एवरीवन शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज द एक्स विच इज वेरिएबल। ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस थिंग, सो टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस थिंग, सबको पता है कि जो कॉस की वैल्यू होती है ये कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करती है ना। जो भी कॉस थीटा होता है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई कर सकता है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मुझे ये मैक्सिमम चाहिए तो व्हाट इज द सिचुएशन दैट वी शुड पुट इट हियर। सो आई थिंक वी शुड पुट 2 बीटा एक्स माइनस थीटा वी एज सम ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई,
where n should start from 0, 1, 2. Is it making sense? अगर ये 2n पाई का फंक्शन आ गया तो ये कॉस हमेशा 1 होगा, और अगर ये क्वांटिटी 1 हो गई, क्योंकि देखो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, इफ यू कैन मैक्सिमाइज दिस कॉस विच मीन्स यू कैन मैक्सिमाइज दिस मॉड ऑफ Vx, yes or no? Yes, clear? So if I can maximize this particular quantity which is from -1 to 1, which is considering the maximum possible value as 1, इसकी cos की वैल्यू 1 कब आएगी? जब 2 beta x minus theta i 2n pi का मल्टीपल होगा. From there you can also calculate the value of x. That should come out to be theta v plus 2n pi upon 2 beta. What is beta? It is lambda upon 2 pi. So this will become lambda upon 4 pi. एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है यार, है ना? हर एक पॉइंट थोड़ा सा डिस्कशन में बार बार बोल रहा हूँ, कनेक्टिंग है, थोड़ा सा लेंदी डिस्कशन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक पॉइंट पे आपको क्लैरिटी रखनी है. देन ओनली यू कैन सॉल्व द स्टैंडिंग वेव रेशियोज क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेशन. तो जब तक स्टैंडिंग वेव रेशियो खत्म होगा, आई टीच यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस विदाउट एक्चुअली राइटिंग इवन अ सिंगल लाइन, बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स दैट वी आर गिविंग. So I hope everyone has calculated the value of mod of Vx max. So the condition is coming out to be that this mod of Vx max will be calculated at these particular x values. अब इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो what I am trying to tell. देखो यहाँ पे समझिए इस बात को. यहाँ पे देखो एक फॉरवर्ड वेव थी यहाँ पे. कल मैं इसका एनिमेशन भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है? आज की क्लास में डेरिवेशन करना है, पहले कन्विंस हो जाते हैं, फिर कल इसका हम लोग एनिमेशन भी देखेंगे. ये बैकवर्ड वेव, ठीक है? चलो, ये हो गई फॉरवर्ड वेव, ये हो गई बैकवर्ड वेव और रिवर्स वेव. तो मुझे आपको ये बताना है इस पॉइंट पे कि जब ये दोनों वेव्स आपके ट्रैवल कर रही होंगी, अगर आप किसी भी जनरल पॉइंट पे खड़े होते हैं, इफ यू स्टैंड एट एनी जनरल पॉइंट इन द ट्रांसमिशन लाइन, obviously you will get the combination of these two, yes or no? So at this point, at some Vx, you will get the combination of this Vf plus Vr, yes or no? ठीक है? तो इन दोनों का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा. This is your Vfx, this is your Vrx. So this is your Vfx, this is your Vrx. ठीक है? तो आप एक सोच समझ के कॉमन सेंस से एक पॉइंट बताइए that if at any general point you are getting the combination of Vfx and Vrx, which means at every point these two voltage waveforms will superimpose on each other. So when they will superimpose on each other, sometimes what may happen that they will interfere positively, or their interference will be like that the maximum value you will get, or they will add up at those particular points. कभी कभी क्या होगा जब ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे, सो व्हेन दे विल सुपर इम्पोज एक्चुअली वन वेव विल बी हैविंग हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू, अनदर वेव विल बी हैविंग लोवेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, सो दैट इंटरफेरेंस विल बिकम मिनिमम. So what you can say that when these two waveforms will superimpose on each other, sometimes there will be constructive interferences, sometimes there will be destructive interferences. What do you understand by constructive interferences? Constructive interferences means the points where this forward and reverse voltage actually add up to each other and they give the maximum possible value of the superimposition. At some points they will cancel out each other or they will subtract from each other, and at that point they will give the minimum possible value of the voltage wave. कितने लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ पा रहे हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक वेव आपकी राइट साइड में जा रही होगी, एक आपकी लेफ्ट साइड में जा रही होगी. हर एक पॉइंट पे ट्रांसमिशन लाइन पे these two waves will have some interferences or superimposition. Superimposition will result sometimes in the constructive interference, sometimes in the destructive interference. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? वहाँ पे दोनों के वोल्टेजेस ऐड हो रहे होंगे दोनों पॉइंट्स में, एंड यू विल बी हैविंग द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द वोल्टेजेस. एट सम टाइम्स देयर विल बी द डिफरेंस ऑफ द वोल्टेजेस, एट दोज पॉइंट्स यू विल बी गेटिंग द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द वोल्टेजेस. सो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन सी दैट व्हेनेवर वी ड्रॉ द पैटर्न ऑफ दिस forward and reverse voltage wave on a single axis, at that point we will have some points where the voltage will be maximum and some points where the voltage will be minimum. ठीक है, समझ आ रही बात? तो आई थिंक ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं. एट द सेम टाइम वी हैव ऑब्टेन्ड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस Vx max. तो इसको ज़रा देखने की कोशिश करिए. दिस इज मॉड ऑफ Vx. नाउ यू हैव ऑब्टेन्ड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू विच इज कमिंग आउट टू बी 1 प्लस मॉड गामा बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड गामा बी इंटू 1, है ना? इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आपने 1 पुट कर दी, तो अंदर देखो क्या बन गया. So you can see that inside it is coming out to be 1 plus mod gamma v whole square, and this is under root. ये अंडर रूट और होल स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली यू आर गेटिंग द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू which is coming out to be mod of Ef 1 plus mod gamma. Very crucial point, very important point.
मैक्स। ठीक है, कितने लोग बता सकते हैं ये जो Vx आपने कैलकुलेट करा ये एक सिंगल पॉइंट पे मिलेगा या मल्टीपल पॉइंट्स पे मिलेगा? सो एज वी हैव सीन दिस पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कैन बी कैलकुलेटेड एट x इक्वल टू, देखो यहाँ पे फॉर्मूला निकाला ना आपने, थीटा बी प्लस 2n पाई इंटू लैम्डा अपॉन 4 पाई, एंड व्हाट इज दिस n? This is going you 0, 1, 2, 3, which means the maximum possible value of the superimposition, the maximum possible value of the superimposition of the forward and backward wave will occur at those distances. ये x इक्वल टू थीटा बी प्लस 2n पाई में n इक्वल टू 0 पे भी होगा, n इक्वल टू 1 पे भी होगा, n इक्वल टू 2 पे भी, n इक्वल टू 3 पे। मतलब अगर मैं लोड से सोर्स की तरफ चलता चला जाऊँ तो ऐसे x के बहुत सारे डिस्टेंसेज आएंगे जहाँ पे मुझे मैक्सिमम सुपरइम्पोजिशन मिलेगा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। होपफुली एवरीवन इज फॉलोइंग दिस वेरी क्रूशियल पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ मेनी ऑफ यू टेल मी कि ये जो आ रहा है, ये जो आपने निकाला, ये x का फंक्शन आ रहा है या कांस्टेंट आ रहा है? दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू टेल मी। सो इज इट कमिंग आउट टू बी x का फंक्शन और इट इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट? So everyone can see that mod of Vf will also become constant. This is constant. Ultimately, it is not the function of x. So this is a constant value. ठीक है, और independent of x. So I just want to throw two questions towards you. The very first question I want to ask you that if you want to calculate the maximum possible voltage at a distance x from the load, so you have to tell me whether that maximum possible voltage will occur at single value of x or multiple values of x. So this is something which you have to answer very quickly. मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप जो भी वेव ट्रैवल कर रही है ट्रांसमिशन लाइन के अकॉर्डिंग, ऑब्वियसली वो दो वेव्स का कॉम्बिनेशन है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द लोड, so you will get the maximum possible voltage at a single value of x or you will get at it multiple values of x. So everyone has to answer this question. सब लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का. मल्टीपल वैल्यूज ऑफ x, मल्टीपल वैल्यूज ऑफ x पे वो वैल्यू मिलेगी. सेकेंड पॉइंट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द लोड. सो विल इट बी कांस्टेंट एट दोज वैल्यूज ऑफ x और ये फिर x का फंक्शन आएगा. मतलब जो भी मैक्सिमम वैल्यू आप कैलकुलेट करें, आर यू गेटिंग द सेम मैक्सिमम वैल्यू एट एवरी पॉसिबल x, आर यू गेटिंग द डिफरेंट मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ y एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल पॉइंट कि आपको हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए डिफरेंट वैल्यूज नहीं बल्कि एक सेम वैल्यू मिल रही है, विच मीन्स ऑन अ ट्रांसमिशन लाइन, across a transmission line, the maximum possible value of the voltage at any point x, which is defined by this particular values, will have a same value or will have a constant value. Very good. ठीक है, तो ऑलमोस्ट सबने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है. तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोगों ने किया और ये डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट भी था अपने लिए. ठीक है, चल सकते हैं आगे. ठीक, आगे सबको समझ में ये पॉइंट. Anyone is having any doubt, you can ask me. I am watching your comments. So if anyone is having any doubt, देखो बहुत कॉन्सेंट्रेशन से आज की क्लास समझना. आज के जो 50-55 मिनट है ना वो आगे की 5 क्लासेस में कैरी फॉरवर्ड होंगे. So that is why today's class is going to be very important. I am giving you the exact idea how to calculate these particular values, and we have obtained this. लास्ट में मैं समराइज करूँगा कि इतना याद रखना, but as of now you must understand all the points. ठीक है, चलो. Similarly देखो आपने ये कैलकुलेट कर लिया था. Okay. So I hope this is clear to everyone. E to the power j beta x under root 1 plus mod gamma b square plus 2 times mod gamma b cos 2 beta x minus theta. आप मुझे बता सकते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? What will be the minimum value of this thing? So if someone asking me what is the minimum value of this particular quantity, जिसका भी मॉड ले लेते हैं. Yes. So this is something, ये देखो इसी को दोबारा लिख दिया है. Same thing we have written it again. यहाँ पे जो लिखा था आपने ना mod Vf 1 plus gamma v square, the same thing we have written it again. So if someone is asking me what is the minimum possible value of this thing, again we know that this mod will be constant, this will also be, चलो मैं इसको mod of Vf ही लिख देता हूँ, इसको हटाते हैं, इसको आप लिखिए mod of Vf. Just like that. So if someone is asking me what is the minimum possible value of the voltage at a distance x from the load, again I will come to the variable parameter. अब मुझे बताओ अगर आपको minimum possible value कैलकुलेट करनी है, so can you tell me in this case what should I do? Obviously we should keep this cos 2 beta x minus theta b equal to -1.
ये जो 2 बीटा एक्स कॉस की जो वैल्यू होती है वो -1 कब मिलती है? सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी -1 ओनली व्हेन it is the odd multiples of pi. So from there you can get the value of x as theta v plus 2n plus 1 pi upon 4 pi into lambda. Again you will put values of x. So this becomes 0, 1, 2 like that. इसका मतलब अगर मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देयर वर सम पोजीशंस लाइक दैट. फाइन, ओके. ये पॉइंट भी सबको समझ आया कि अगर आप वापस से अगेन द सेम थिंग आई एम रिपीटिंग इट दैट एक फॉरवर्ड वेव एक बैकवर्ड वेव हर जगह पे दोनों ऐड होते रहेंगे, हर जगह पे ऐड होते रहेंगे. किसी भी एक्स पे रुकोगे तो देयर माइट बी द पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देयर माइट बी द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देयर माइट बी द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरफेरेंस विच इज बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव. सो हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव देखना चाहते हैं. फॉर कंस्ट्रक्टिव वी वांटेड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, फॉर डिस्ट्रक्टिव वी वांटेड टू कैलकुलेट द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू. तो अब मुझे बताओ यहाँ से मॉड ऑफ एक्स मिनिमम कितना आ रहा है? तो शायद सबने कैलकुलेट भी कर लिया होगा. इट इज कमिंग आउट टू बी mod of EF 1 minus mod gamma v. So I am writing it directly here. Okay, you can just go and calculate this thing. यही आपका आ जाएगा कैलकुलेट करने पर. This is representing the minimum value of, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, मैं दिखाता हूँ. ये आपने लिखा था ना मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द लोड. So this will become the maximum magnitude of voltage and this becomes the minimum magnitude of the voltage. तो just मैं लिख देता हूँ कि this value is also constant. ठीक है, और ये एक सिंगल पॉइंट पे अकर नहीं करेगा. अगर आप लोड से चलना शुरू करेंगे so it will occur at 2n plus 1 pi plus theta v into lambda upon 4 pi. And just you have to vary your n from 0, 1 to infinity. ठीक है, समझ आ गई बात सबको यहाँ तक? सो आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपके काफ़ी अच्छे से क्लियर हुए कि जब भी आप एक ट्रांसमिशन लाइन पे ट्रैवल करते हैं सो एट द ट्रांसमिशन एक्चुअली देयर आर 2 वेव्स, बट वो दोनों वेव्स तो आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि दोनों वेव्स ऐड हो जाएंगे. सो व्हेन दोज वेव्स विल ऐड अप सो दे एक्चुअली टेक द फॉर्म ऑफ some form of wave or some form of standing wave, where somewhere you get the maximum value of the magnitude, somewhere you get the minimum value of the magnitude. Some positions are there where you will be getting the maximum value of magnitude, those are the positions. और कुछ positions ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको minimum value of the magnitude मिलती है after superimposition. अब एक important चीज़ बहुत ध्यान से समझना आप, अगर मैं ये दोनों चीज़ें वापस से लिखना चाहूँ, mod of Vx max which was coming out to be mod of EF 1 plus mod gamma v, ये था आपका. Similarly if I have to write mod of Ex min, so this will become mod of EF 1 minus mod gamma v. ठीक है, अगर इसको मैं ऐसा लिख देता है mod of EF, okay, I could have also written it like this. So can you tell me are we getting the same thing that we discussed? यहाँ पे देखो ये फॉरवर्ड वाली और बैकवर्ड वाली ये दोनों आपस में क्या हो रहे थे? ऐड. यहाँ पे देखो फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपस में क्या हो रहे हैं? सब्ट्रैक्ट. तो ये तो आना है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू. दिस इज समथिंग विच वी आर डिस्कसिंग ऑलरेडी. तो हम जस्ट ये बोल रहे थे कि जब भी आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगा देयर विल बी द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या दोनों के फेज ऐसे होंगे कि दोनों का फेज डिफरेंस जो आ जाएगा वो 2n पाई आ जाएगा. इन दैट केस you will be having the maximum amplitude summation. There you will be having the maximum amplitude difference. तो यहाँ पे magnitude of VF गया और यहाँ पे mod gamma v VF के साथ add हो गया, यहाँ पे subtract हो गया. So ultimately you are getting these two values. Fine. Both these values are constants. ये भी constant है, which means independent of x, and this value is also constant. It is independent of x. Can you tell me what will be the ratio of this? अगर मैं इनका रेशियो कैलकुलेट करूँ, ऑब्वियसली दोनों अलग अलग जगह पे होंगे. ये कहाँ पे होगा? एट x इक्वल टू 2n पाई प्लस थीटा v अपॉन 2 बीटा, एंड दिस विल अकर एट x इक्वल टू 2n पाई प्लस थीटा v अपॉन 2 बीटा. ठीक है, दोनों अलग अलग जगह पे होंगे बट क्योंकि कांस्टेंट है
जो भी जगह आपको मिलेगी वहाँ पे ये वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी. सो कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस थिंग? दिस इज कमिंग आउट टू बी 1 प्लस मॉड गामा वी 1 माइनस मॉड गामा. अगर ये दोनों कांस्टेंट थे तो ये पैरामीटर भी आपको कांस्टेंट मिला. दिस पैरामीटर इज आल्सो कांस्टेंट and this is the parameter which is known as your VSWR, or this is called as voltage standing wave ratio. So without actually going into the graphical interpretation, we are not interested in the graphical interpretation as of now. In today's class we are more interested in the mathematical part. So if today someone asks you what is the meaning of the VSWR, voltage standing wave ratio, so आप क्या बोलेंगे कि एक ट्रांसमिशन लाइन होती है, उस पर एक वेव फॉरवर्ड जाती है, एक बैकवर्ड जाती है, दोनों लाइन में हमेशा एडअप होकर एक स्टैंडिंग वेव देंगी. एडअप होने के बाद कुछ जगह पे उनका एडिशन बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगा, कुछ जगह पे एडिशन सबसे कम पहुंचेगा. अगर वो बहुत ज़्यादा जो पहुंचा उसका मैग्नीट्यूड मैं कंसिडर कर लूँ और जो बहुत कम पहुंचा उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर कर लूँ और दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर लूँ. सो दैट पर्टिकुलर रेशियो विल गिव यू द वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो. मोर ओवर द वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो अलॉन्ग द ट्रांसमिशन लाइन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. तो मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि एक ट्रांसमिशन लाइन ले लो और ट्रांसमिशन लाइन आप खरीद के लाते हो मार्केट से, तो आप उसमें x की कोई भी डिस्टेंस कंसिडर करो, यू कंसिडर एनी डिस्टेंस ऑफ x, योर वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो विल ऑलवेज बी कांस्टेंट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट योर वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो इज independent of x, which means if you can calculate this voltage standing wave ratio at the load, you can also calculate this voltage standing wave ratio anywhere on the line at a distance x from the load. So असल में जो voltage standing wave ratio देता है, it just gives you the measure of that what is the maximum height achieved by the standing wave ratio divided by what is the minimum height achieved by the standing wave ratio. तो standing wave ratio अधिक से अधिक कितना हो सकता है और कम से कम कितनी वैल्यू वो ले सकते हैं. So hopefully this point is understood by everyone that we have calculated the mathematical parameter of VSWR. तो आगे से कभी भी आपको VSWR कैलकुलेट करना होगा, you just have to write this formula. कभी कभी इसको S से हम लोग डिनोट भी करते हैं. So this becomes 1 plus mod gamma V upon 1 minus mod gamma V. ठीक है. What is this gamma V? तो gamma V को भी डिफाइन कर लेते हैं हम लोग. Gamma V is reflection coefficient at x equal to 0. This is a complex quantity. Okay, तो just इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, this will give you the mod gamma V, or it will give you the ZL minus Z0 upon ZL plus Z0 magnitude upon ZL plus Z0. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी हम लोग सीखेंगे इसमें. एंड व्हाट इज थीटा वी? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एंगल ऑफ गामा वी, जिसका इसमें कोई रोल नहीं. ठीक है, तो सबको समझ आ गया मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ द वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो. So this is the voltage standing wave ratio. Just we are doing the mathematical calculation. What are the parameters that we are going to understand in a bit? कि what are the mathematical implication? What is the range of this thing? Graph कैसे बनता है? वो सारी चीजें समझेंगे. But before that, you must be comfortable in defining the parameters of the voltage standing wave ratio. ठीक है? चलो. अब एक पॉइंट देखो यहाँ पे लास्ट में. अब अगर ये सारे के सारे पॉइंट को समराइज करना हो, so what are the things that you can remember? ठीक है? So first step you should do in any question. कैलकुलेट गामा वी. सबसे पहले क्या किया करो, गामा वी कैलकुलेट कर लिया करो, विच विल बी गामा वी एट एक्स इक्वल टू 0. तो गामा वी एट एक्स इक्वल टू 0 मीन्स गामा वी एट लोड. दिस विल बिकम ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0. फ्रॉम दिस गामा वी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द मॉड वी. तो जो ये गामा वी आ जाएगा, इट विल बिकम मॉड गामा वी e टू द पावर j थीटा. So you can calculate these values of mod gamma v and theta. दोनों की हमें ज़रूरत पड़ती है. फर्स्ट पॉइंट में आपको हमेशा ये करना होता है. In the second point, what you will do, you will calculate position of voltage maximum. So position of voltage maximum becomes, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. 2n पाई प्लस थीटा वी अपॉन 2 बीटा. जस्ट यू हैव टू पुट वैल्यूज ऑफ n एज 0 1
दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों चीज़ें आपकी यूज हो रही हैं। ये थीटा भी कहाँ से निकालोगे, यहाँ से जो कैलकुलेट करा, ठीक है। तो ये थीटा भी हमेशा यहीं से कैलकुलेट करना, वॉट एवर यू आर गेटिंग इट फ्रॉम हियर, दिस थीटा भी हैज टू बी टेकन देयर। 2n पाई में n की वैल्यूज पुट कर देंगे, n इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3, फाइन। सिमिलरली इन द थर्ड पॉइंट you will calculate position of voltage minimum. Position of voltage minimum. So the position of voltage minima becomes, again you will calculate these values. voltage minima का मतलब ना magnitude max minimum या maximum होना चाहिए, ये बात भी आप याद रखेंगे, that this magnitude has to be minimum or maximum at x equal to 2n plus 1 pi प्लस थीटा भी अपॉन 2 बीटा। थीटा भी वहीं से कैलकुलेट करना जहाँ से अभी हमने कैलकुलेट करा। फोर्थ पॉइंट दैट यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर इज व्हाट इज VSWR। सो VSWR becomes the ratios of mod of Vx max upon mod of Vx min, and you will get this quantity as 1 plus mod gamma v upon 1 minus mod gamma v. These parameters are constant parameters. So all these parameters are constant parameters. So if you calculate it, it will be along the line. So sometimes it is also said that the voltage standing wave ratio is the parameter of a transmission line. तो आप कभी भी VSWR के questions पढ़ोगे, CSWR के questions पढ़ोगे, question में दिया रहेगा that VSWR of a given transmission line or CSWR of a given transmission line. So it will not tell you that VSWR is present at a distance x from the load, because it is ultimately not depending upon the values of the x. So what you can say in this case, whatever is the value of Vx max you are getting, these values of Vx max is coming out to be 1 plus mod gamma v, Vx min is coming out to be 1 minus mod gamma v, and it will be constant throughout the line. ठीक है, समझ आया सबको ये पॉइंट? तो ये काफ़ी क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए। तो अगर हम लोग x की ये वैल्यूज फिक्स कर दें तो जो ये Vx min और Vx max आ रहे हैं ये आपको हमेशा कैसे मिल रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो ये इतनी समरी आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एनी गिवन क्वेश्चन यू विल कैलकुलेट गामा v. आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ गामा v, try to calculate the magnitude and theta v. Both are desirable because theta v is helping us in the calculation of these distances and magnitude of gamma v is helping us in the calculation of VSWR. बाद में चल के इनकी वैल्यूज में हम लोग लिखेंगे फर्स्ट मिनिमम फर्स्ट मैक्सिमम, वो तो खैर अपना बात का डिस्कशन है, बट ये बेसिक वाली सारी बातें अगर क्लियर है देन वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, so let us move on to the next part. So the same thing that we have did for the voltage, we have to do the same thing for the current. करंट के लिए भी यही सेम चीज़ करना है, तो ये मेरे साथ साथ आप भी करते जाइए फॉर द करंट ऑल्सो। सेम चीज़, बिल्कुल सेम एनालिसिस करंट के लिए भी हमें करनी है। ज़रा ध्यान से देखते जाइए करंट के लिए क्या क्या एनालिसिस होगी। सो इफ यू वांट टू डू द सेम थिंग विद द करंट, व्हाट विल हैपन फॉर द करंट। अच्छा, करंट वाले में एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा, उसको भी याद रखना आपको हमेशा, कि इसको और कैसे सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। सो Ix बिकम्स IL अपॉन 2 Z0, Z0 plus ZL e to the power minus j beta x plus IL upon 2 Z0, Z0 minus ZL e to the power minus j beta x। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये Ix ले लेता हूँ। अगेन लेट मी टेक दिस IL upon 2 Z0, ZL plus Z0 और Z0 plus ZL e to the power j beta x as common. Inside you will get it as 1 plus Z0 minus ZL upon Z0 plus ZL e to the power minus j 2 beta x। इसी टाइम प्रैक्टिस करके खत्म करो इसको, बाद में इसको छोड़ने की जरूरत नहीं। So if you are attending the class, immediately do it। ये देखो आपको क्या मिलेगा, call it as IF, it can be a complex quantity, so you can write it as e to the power j theta, जस्ट एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी इस वजह से लिख दिया। अगेन आई कैन राइट दिस गामा एक्स, सॉरी Ix इक्वल टू Ix बिकम्स IF e टू द पावर j बीटा x, ठीक है, e टू द पावर j बीटा x ले लिया। ये लिख रहा होगा आपको गामा i विच इज गामा i
at x equal to 0. So what I am writing it as 1 plus gamma I e to the power minus j 2 beta x. ठीक है, काफ़ी इजी है. तो जस्ट मैंने इसको बाहर लिखा आई एफ, दिस इज योर e टू द पावर j बीटा x, दिस इज 1 प्लस गामा i e टू द पावर माइनस j 2 बीटा x. अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, सो दैट वी कैन डिस्कस इट राइट नाउ. आई होप इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट ऑल द थिंग्स. अब देखो मैं यहीं से आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं से कैलकुलेशन आगे करो. आई जस्ट वांट टू गिव यू वन इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट यू शुड अंडरस्टैंड. देखिए यहाँ पे गामा आई क्या होता है. गामा आई यूज्ड टू हैपन ZL minus Z naught upon, sorry, Z naught minus ZL upon Z naught plus ZL. ठीक है ना, बिल्कुल ठीक चल रहा है. वैसे ही गामा V आप क्या लिखते थे, ZL minus Z naught upon ZL plus Z naught. So this was your gamma V. Now what you can do in this case, you can very clearly understand that this gamma I is equal to minus gamma V. ऐसा लिख सकते हैं कि अगर मैं इस गामा आई की जगह पे माइनस गामा भी लगा देता तो भी तो काम चलता अपना. सो व्हाट आई वांट टू डू एक्चुअली, आई वांट टू कन्वर्ट ऑल द गिवन इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट. I do not want to develop two different relationship, one in the terms of gamma v, one in the terms of gamma I, or one in terms of voltage reflection coefficient, one in terms of current reflection coefficient. So what actually I want to do, I want to make all the formulas, all the parameters a uniform parameters, so that we can recall all the things in a very easy manner. तो जस्ट मैं इस गामा आई को गामा वी से रिप्लेस करता हूँ, उसके बाद हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे. सो दिस वाज द स्लाइट मॉडिफिकेशन दैट आई डिड इन दिस केस. आई डिड नॉट प्रोसीड विद द गामा आई इटसेल्फ, आई कन्वर्टेड इट इनटू गामा वी, देन नाउ आई कैन प्रोसीड इट फॉरवर्ड. ठीक है, बताते भी जाओ कमेंट सेक्शन में. ये पॉइंट समझ आ गया सबको कि मैंने यहाँ पे क्यू माइनस गामा वी रिप्लेस किया ताकि सारे फॉर्मूले अपने बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से कैलकुलेट हो. ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं आई एक्स आपको क्या मिलेगा. सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द आई एक्स इन दिस केस, this Ix is coming out to be If e to the power j beta x. This will become 1 minus mod gamma v e to the power j theta v e to the power minus j 2 beta x. अब सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल वैसी हो गई. So this Ix becomes If e to the power j beta x 1 minus mod gamma v e to the power minus j. This becomes 2 beta x माइनस थीटा. वही सेम चीज आपको मिलेगी. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आगे देखते हैं. अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन द कैलकुलेशंस ऑफ द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एंड द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट. तो उसके लिए मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा. सो टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड व्हाट आई विल डू, this is your If e to the power j beta x, okay, and this you can write it as 1 minus mod gamma v cos 2 beta x minus theta v plus j mod gamma v sin 2 beta x minus theta. Same thing we want to calculate it here again. So this mod of Ix becomes mod of If under root 1 plus mod gamma v square minus 2 times sin square theta cos square theta मैंने फिर से 1 कर दिया. It became 2 beta x minus theta. ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिकल. अगर फर्स्ट पार्ट आपको समझ आए so this will be very simple to understand. चलो यहाँ तक हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ली. अगेन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस Ix, तो आपको दिख रहा होगा ये वैल्यू आपको क्या दिख रही है, कांस्टेंट. दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट. व्हाट इज द वेरिएबल पैरामीटर हियर, दिस x will be the variable. So again you have to adjust the x to get the maximum and minimum possible value. तो फर्स्ट वाले पार्ट का बिल्कुल सिमेट्रिकल पैरामीटर है मॉड ऑफ 1 प्लस
mod gamma v square minus 2 times mod gamma v cos 2 beta x minus थीटा। ज़रा बताइए यहाँ पे जो थीटा आपको दिख रही है ये वाला, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? कॉस की, दिस कॉस इट विल बी लाइंग बिटवीन -1 to 1। So this cos will exist between -1 to 1, ठीक है। cos आपका हमेशा -1 to 1 के बीच में लाई करेगा। तो जस्ट आप फाइनली ये चीज़ देखो यहाँ पे, अगर मैं cos बीटा x माइनस 2, तो मैं cos 2 बीटा x माइनस थीटा भी अगर इसको 1 ले लेता हूँ, तो आपको मुझे बताना व्हाट विल यू गेट? श्योरली यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट, क्योंकि अगर ये 1 हुआ तो ये तो 1 हो जाएगा मैक्सिमम, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन भी लगा हुआ, बिकॉज ऑफ दैट इट विल ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। सो यू विल गेट दीज वैल्यूज ऑफ मॉड ix min इक्वल टू मॉड ऑफ if इंटू 1 माइनस मॉड गामा। चेक कर लो यार और बता दो अगर आप इस बात पे कन्विंस्ड हैं तो। यहाँ से देखो x आपको क्या मिल जाएगा? अगेन द सेम 2n पाई प्लस थीटा भी अपॉन 2 बीटा, दिख रहा है x ऐसा मिल जाएगा आपको। तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये मिला, अगर आपको याद हो अभी तक का डिस्कशन, दैट यू कैन कंक्लूड दैट द पोजीशंस फ्रॉम द लोड इफ यू फिक्स, देन इफ the x which is 2n pi plus theta v upon 2 beta is giving you the minimum magnitude of the current, at the same position you are getting the maximum value of the voltage। तो अगर मैं वोल्टेज और करंट की बात करूं और एक पोजीशन फिक्स करूं, सो एट अ सिंगल पोजीशन यू विल गेट द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज, एट द सेम पोजीशन यू आर गेटिंग द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लोग बात करें तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू जहाँ जहाँ पे मिलेगी, एट द सेम इंस्टेंसेस यू विल गेट द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द करंट। दैट इज वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द हियर। व्हाई इट इज ऑब्वियस? बिकॉज द पैरामीटर गामा विल बी कॉमन इन बोथ द थिंग्स, और ये जो थीटा भी आएगा ये थीटा भी दोनों में सेम आएगा, क्योंकि थीटा भी आप किसकी वजह से अगेन निकालेंगे, यू विल कैलकुलेट द थीटा भी बिकॉज ऑफ दिस गामा भी। ठीक है ये सारे पॉइंट ओके, चल सकते हैं आगे। चलो ऑन द सिमिलर बेसिस लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट द Ix max। Ix max occurs when your cos 2 beta x minus theta v। So those who will be following from the very starting, अभी तक वो लोग बहुत ही कंफर्टेबल हो गए होंगे ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो यही थोड़ा सा आपको ट्रबल करता है, बट इट इज ऑल्सो वेरी इजी। कुछ है नहीं, जस्ट एक बार अंडर रूट लगाना है। कुछ ऐसा भी कैलकुलेशन है जो आप नहीं कर सकते, काफ़ी आसान सी कैलकुलेशन। ओके, सो फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एस थीटा वी प्लस 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 बीटा। तो इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, भूल जाना तो डेराइव कर लेना तुरंत का तुरंत, कुछ भी इसमें रटो मत। ये आया आपका। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Ix max? So this Ix max is going to give you mod of If into 1 plus mod gamma। ठीक है, समझ आया? ओके, तो ये निकाला आपने Ix max। पोजीशंस जस्ट थोड़ी सी इंटरचेंज हुई, सो द पोजीशंस बिकम्स वेरी just positions are interchanging। These were the positions where you are getting the minimum magnitude of the voltage। उसी पोजीशन पे आपको मिल रहा है maximum magnitude of the current। तो मैग्नीट्यूड वर्ड जरूर अपने दिमाग में आप बोलिए, सिर्फ मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट बोलने से काम नहीं चलेगा। स्टैंडिंग वेव रेशियो इज नॉट द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज टू मिनिमम वोल्टेज, इट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज टू द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज। सो डू नॉट फॉरगेट टू ऐड द वर्ड मैग्नीट्यूड। ओके, ऐसे नहीं बोल सकते आप मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मिनिमम वोल्टेज यू विल गेट द स्टैंडिंग वेव रेशियो, दिस इज नॉट करेक्ट। द स्टैंडिंग वेव रेशियो इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज टू मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और द करंट एज पर द केस। Similarly, now you have obtained mod of Ix max, which was coming out to be mod of If 1 plus mod gamma। Similarly, you are also getting mod of Ix min, which is coming out to be 1 minus mod gamma v at different locations। So if you calculate these two things separately and you just take the ratio, you will get the CSWR or the current standing wave ratio।
So to calculate the current standing wave ratio, you must first of all find out the Ix, take its magnitude and calculate the maximum value. Find the Ix, take its magnitude, find out the minimum value, and you will get to know that it is coming out to be 1 plus mod gamma v upon 1 minus mod gamma v, which is same as CSWR. Again, this quantity is also a constant, okay, which means independent of x. So whether it is VSWR or it is CSWR, these two quantities are always independent of the location from the load. कहीं पे भी आप load की से जाइए, the VSWR and CSWR are the parameters of the complete transmission line. So a transmission line sometimes is also defined in terms of their VSWR and CSWR. मतलब आप मार्केट में जाके ये भी बोल सकते हो कि मुझे 5 VSWR वाला एक ट्रांसमिशन लाइन दे दो या 10 CSWR वाला एक ट्रांसमिशन लाइन दे दो. So this VSWR or CSWR are the parameters of the transmission line which is independent of the position from the load. Load से आप कहाँ पे जा रहे हो उससे मतलब ये provided you have these two values in your calculations. ठीक है, यहाँ पे भी देख लो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे भी देख लो क्या क्या करना है. मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स हम लोगों ने लिए. देखो समरी में क्या क्या लिखा था, गामा भी निकालो, पोजीशन निकालो, पोजीशन CSWR, सेम थिंग यहाँ पे भी करते हैं. So this summary you have to remember. तो क्या करना है जस्ट आपको इन द फर्स्ट स्टेप यहाँ पे भी गामा भी कैलकुलेट करना. ओके, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द गामा आई, सॉरी गामा आई अपॉन ZL प्लस Z. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट मॉड गामा भी upon ZL plus Z0 and also calculate the theta. Okay, क्योंकि आपको ये पता है कि this will become mod gamma v e to the power j theta. तो हमेशा वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट से कैलकुलेशन आप अपने आगे बढ़ाएंगे. सेकेंड, पोजीशन ऑफ current maximum. So when we talk about current maxima, it means the magnitude of the currents are maximum. So you calculated magnitude and you want to calculate its maximum value. So the values of x that you will get it as 2n plus 1 pi plus theta v upon 2 beta. सारे क्वेश्चन आपसे देख के लगेंगे, बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे शायद आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, बट प्रोवाइडेड आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, है ना. अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपको कुछ फॉलो भी ना करो और कोई चमत्कार हो और रातों रात आपसे क्वेश्चन लगने लगे. सो ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क हार्ड. You have to understand all the things. Position of current minima. Current minima means those positions at which the magnitude of the current is minimum. So if I want to calculate the minimum value of the current, so those positions will become x equal to 2n pi plus theta v upon 2 beta. If you can write the values of n, चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो आप यार, n की वैल्यू 0, 1, 2 ले लेना. From there you can take the values of n to be 0, 1, 2. Okay, and the fourth part, to calculate the CSWR, you will calculate 1 plus mod gamma I, sorry gamma v, so gamma v upon 1 minus mod gamma v, and this is coming out to be mod of Ix max upon mod of Ix min. ठीक है, कुछ समझ में आया आज की क्लास में? तो बड़ी ही एक अजीब सी क्लास थी आज की. अजीब सी इन द सेंस कि जनरली आप ये चीज़ें देखोगे ना, यू विल नॉट गेट दीज थिंग्स एनीवेयर. यू विल सिंपली राइट Vx max अपॉन Vx min, ऑल द थिंग्स विच डज नॉट गिव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. क्या Vx max, क्या Vx min, क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हो, किसका रेशियो है. तो किसी भी किताब में देखोगे तो आपको कभी भी इतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, बिकॉज द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आर हिडन इन दैट. So that hidden mathematical calculation I am giving it to here, so that you can have a very clear picture of the transmission line, that whenever you are calculating the standing wave ratios, we are very clear right now that in case of standing wave ratios, I will calculate the Vx at any certain point from the load, I will calculate its magnitude, and after calculating the magnitude, I will maximize it and I will minimize it. So once I get the maximum and minimum values, I take the ratios of those magnitudes, then we are going to get the either current standing wave ratio or the voltage standing wave ratio. So this clear cut concept or the clarity of thought should be there, so that you can understand the shortcuts of the standing wave ratios in the upcoming classes.
If you do not have this conceptual clarity, you just understand voltage standing wave ratio मतलब maximum by minimum, current मतलब maximum by minimum. So you will never be able to understand the shortcuts, or you will never be actually relate to the shortcuts in the examination. So these points will actually give you the idea that what we were trying to calculate. So let me summarize all the points as of now. What did we study in today's class? So first thing which I want to say that एक एक करके मैं summarize कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए. The first thing which I want to say in this case is that in case of any transmission line at any distance x from the load, you will be having forward current, forward voltage, and reverse current, reverse voltage. So at any distance of x, if you want to calculate voltage, it will be the combination of the forward and reverse. Similarly, if you want to calculate current, it will be the combination of forward and reverse. So in that case, what you can say that since both these are in the format of a wave, so they will sometimes have a constructive interference, sometimes they will have a destructive interference, which means the magnitude of the voltage will be maximum at some points and the magnitude of the voltage will be minimum at some points. So you can calculate the magnitude of the voltage, you can maximize and minimize it after taking the magnitude. So those maximum and minimum values that you are calculating are actually coming at the different values of x, and all in all you get this idea that the positions where you are getting the maximum magnitude of the voltage are the positions where you are getting the minimum magnitude of the current, or the vice versa, where you are getting the minimum magnitude of the voltage, you are getting the maximum magnitude of the current. Ultimately you get to know that your VSWR and the CSWR are the ratios of the magnitude of the voltages at a distances x, where x are actually representing the positions of voltage maxima and voltage minima. So once you calculated those ratios, you get to know that your VSWR and CSWR are coming out to be constant, or they are the parameters of the transmission line, which means any transmission line can be defined totally in terms of its VSWR or its CSWR. ठीक है, समझ आया सबको? चलो फिर आज की क्लास में इतना ही, बाकी फिर हम लोग कल इसके आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं. So today's class was very important because we developed the concepts of the standing wave ratio. So in today's class, we actually discussed mathematical concepts of VSWR, CSWR. कल हम लोग इसका ग्राफिकल भी देखेंगे और मैं आपको बहुत सारे केसेस भी इसमें कराऊंगा. ठीक है? So all the cases are very important. So in today's class, we discuss these 2 points. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.